Yes, beta, as you can see, this is the second video of your chapter, The Mysterious Affair at Styles, page number 105. Let's start. Yes, you have found one. My interest was aroused. So aroused means created, increased, right? So when the green dress was being asked for, so Dorcas replied, no, not that, sir. But since then I have remembered what the young gentlemen, John and Lawrence, were still the young gentlemen to Dorcas, called the dressing up box. It's up in the front attic, sir, a great chest full of old clothes and fancy dresses and what not. And it came to me sudden like that there must be a green dress amongst them. So if you would tell the Belgian gentleman. So जब वहाँ पे एक ग्रीन ड्रेस की बात होती है, जो डिटेक्टिव हर्क्यूल पायरेट हैं वो ग्रीन ड्रेस के बारे में पूछते हैं, तो डॉक्टर आर्थर हेस्टिंग्स को बोलती हैं, आई डोंट नो अबाउट द ग्रीन ड्रेस बट आई कैन अश्योर यू दैट यू मे फाइंड दैट ग्रीन ड्रेस इन द एटिक. एटिक मीन्स पर छत्ती के ऊपर पड़ी है शायद, वहाँ पे एक संदूक पड़ा है, ड्रेसिंग बॉक्स पड़ा है, उसमें पुराने कपड़े हैं, ठीक है, फैंसी ड्रेस है, तो उसमें आपको शायद वो ड्रेस मिल सकती है, ठीक है. तो आप जाके उसको उस बेल्जियन जेंटलमैन को ये बता दें. मीन्स किसको बता दें? ये हर्क्यूल पायरेट को, जो डिटेक्टिव है उनको आप ये बता दें. आई विल टेल हिम डॉर्कस, आई प्रॉमिस्ड. तो ऑर्थर हेस्टिंग्स यहाँ पे कहते हैं कि डॉर्कस तुम घबराओ मत, मीन्स यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. आई एम गोइंग टू टेल दैट if he is looking for the green dress, he will find that in the chest which is kept in the attic, right? So thank you very much, sir. A very nice gentleman he is, sir, and quite a different class from them to detectives from London. What goes prying about and asking questions. Prying over here means trying to find out information. So he is a good one who is asking and examining us, right? So dear old Dorcas, as she stood there with her honest face upturned to mine, I thought what a fine specimen she was of old-fashioned servant that is so fast dying out. Here Dorcas' appearance has been talked about, that she is the same old-fashioned servant. जैसे कि हर एक सर्वेंट दिखाई देता है वैसी वो लग रही थी डॉर्कस, ठीक है. Specimen over here means a single example of something, right? I thought I might as well go down to the village at once. आर्थर हेस्टिंग कहते हैं मुझे अभी जाना चाहिए और मुझे ये जो मैसेज आपने दिया है कि ग्रीन ड्रेस एटिक में मिल सकती है, मुझे अभी पायरेट को देना चाहिए. सो लुक अप पायरेट, बट आई मेट हिम हाफ वे. जब वो ढूंढने जाते हैं उनको रास्ते में उनको हर्क्यूल पायरेट मिल जाते हैं आर्थर हेस्टिंग को, और वो उनको बताते हैं कि डॉर्कस का मैसेज कि ग्रीन ड्रेस कहाँ पे पड़ी है. वी एंटर्ड द हाउस बाय वन ऑफ द विंडोज. हम उसी घर में एक विंडो के सहायता से घर में घुसते हैं. वी एंटर्ड देयर. There was no one in the hall and we went straight up to the attic. हम attic पे पहुंच जाते हैं. Sure enough, there was a chest of fine old piece ornamented with brass nails. Brass means पीतल. पीतल की किलों से वो उस बॉक्स के ऊपर, you know, brass nail has been used to join that box, that chest, full to overflowing with every imaginable type of garment. कि उस जो संदूक है, वो बॉक्स है, उसमें ओल्ड फैशन सारे क्लोथ्स पड़े हैं. ही सीम्ड समवट apathetic in search of, not showing interest. Okay, that is apathetic. As though he expected no great results from it, suddenly he gave an exclamation. What is it? So Arthur Hastings यहाँ पे रिमार्क क्या करते हैं कि what is it? When they opened that chest, वो बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि what is it? Look, the chest was nearly empty. Chest means वो जो बॉक्स था वो empty था. To their surprise, there reposing right at the bottom was a magnificent black bed. Magnificent means very अद्भुत, beautiful. उस बॉक्स में क्या पड़ा था? सिर्फ एक बियर्ड पड़ी थी, एक दाढ़ी पड़ी थी ब्लैक कलर की. ओहो, said Parrot. ओहो. He turned it over in his hands, examining it closely. New, he remarked, yes, quite new. Here, after touching that black beard and holding it out, and he says, Parrot says that it is new, right? That beard, जो दाढ़ी है वो नई है. After a moment's hesitation, he replaced it in the chest. He went straight to the pantry, where we found Dorcas busily polishing her silver. Pantry means kitchen. जब वो दाढ़ी को देखने के बाद उसे संदूक में रख देते हैं बेटे, देन फिर वो पेंट्री किचन में जाते हैं जहाँ पे डॉर्कस बर्तन साफ कर रही है. देन पॉलिश कर रही है, मीन्स सिल्वर्स मीन्स ऑब्वियसली चांदी के बर्तनों को साफ कर रही है. Parrot wished her good morning with Gallic politeness and went on. Gallic means फ्रेंच में, फ्रेंच के लोग बड़ी पोलाइटनेस से जब बोलते हैं तो दैट इज बड़े प्यार से बात करना, दैट इज इन टिपिकल ऑफ दैट फ्रांस पीपल वी हैव टू टॉक अबाउट इट. तो वो उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं. कौन विश करते हैं? पैरॉट विश करते हैं. किसको? डॉर्कस को विश करते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर
This is your page number 106. Let's continue. We have been looking through the chest, that chest, Dorcas. I am much obliged to you for mentioning it. There is indeed a fine collection there. Are they often used, may I ask? तो यहाँ पे जब उन्होंने चेस्ट को देखा, उस बॉक्स को देखा, तो वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक दाढ़ी मिलती है रखी हुई, ब्लैक कलर की बियर्ड. तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी देन दे टॉक टू डॉर्कस, उससे कहते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई है, तो क्या वो उस कलेक्शन को इसको यूज़ किया जाता है. ऑब्लाइज मीन्स ग्रेटफुल ओवर हियर. सो यहाँ पे डॉर्कस बोलते हैं, वेल सर, नॉट वेरी ऑफन नाउ डेज, दो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी डू हैव व्हाट द यंग जेंटलमैन कॉल अ ड्रेस अप नाइट. तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इट अबाउट इट बेटे, कि यहाँ पे डॉर्कस बोलती हैं कि जो भी संदूक में सामान पड़ा है वो बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन टाइम टू टाइम पार्टीज होती रहती हैं, लाइक ड्रेसअप नाइट, फैंसी ड्रेस पार्टी काइंड ऑफ. तो ये जो जॉन और लॉरेंस हैं, जो कि स्टेप्सन्स हैं एमिली इंगलथॉर्प के, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो वहाँ से वो कपड़े पहन के कुछ ना कुछ बनते रहते हैं. सो हियर शी मेंशंस, एंड ए वेरी फनी इट इज समटाइम्स सर, मिस्टर लॉरेंस ही इज़ वंडरफुल, मोस्ट कॉमिक, मतलब बहुत ज़्यादा फनी करेक्टर है वो. आई शैल नेवर कॉन लॉरेंस, ठीक है. आई शैल नेवर फॉरगेट दैट नाइट ही केम डाउन एज अ चार ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ पर्शिया, कि वो उस नाइट के लिए, उस पार्टी के लिए वो एक चार ऑफ पर्शिया बन के आए थे, किंग ऑफ पर्शिया बन के आए थे. आई थिंक ही कॉल्ड इट अ सॉर्ट ऑफ ईस्टर्न किंग इट वॉज. माइंड डॉर्कस, ही सेज यू विल हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल. यहाँ पे डॉर्कस को वो रिस्पेक्टफुल होने के लिए कहते हैं. These evenings must have been great fun, said Parrot. Generally means friendly. I suppose Mr. Lawrence wore that fine black beard in the chest upstairs when he was Shah Persia. तो यहाँ पे पैरट कहते हैं कि जब वो शाह ऑफ पर्शिया बने थे मिस्टर लॉरेंस, तो उन्होंने दाढ़ी भी पहनी होगी काले रंग की, है ना. सो ही डिड हैव अ बियर्ड सर, रिप्लाई डॉर्कस स्माइलिंग. डॉर्कस ने कहा, हाँ जी, यस, उनके पास बियर्ड थी, उन्होंने बियर्ड पहनी हुई थी. एंड वेल आई नो इट फॉर ही बोरोड 2 स्केन्स ऑफ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि उन्होंने मुझसे ब्लैक कलर की वूल ली थी. स्कीम्स, यहाँ पे स्कीन्स का मतलब क्या था, लॉन्ग पीस ऑफ वूल, ठीक है, जो लूजली टाइड होती है, टू मेक. और मुझे लगता है शायद उन्होंने उसके साथ वो बनाई होगी. एंड आई एम श्योर इट लुक वंडरफुली नेचुरली एट अ डिस्टेंस, कि जो उन्होंने बियर्ड बनाई होगी, अगर उसी से बनाई है तो वो नेचुरली लगती होगी डिस्टेंस से. आई डिडंट नो एज देयर वाज अ बियर्ड अप देयर एट ऑल, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे उस चेस्ट में बियर्ड भी पड़ी है. इट मस्ट हैव बीन गॉट क्वाइट लेटली. आई थिंक देयर वॉज अ रेड विग, मुझे तो अब याद नहीं है, तो अब बहुत टाइम हो गया इस बात को, तो शायद रेड विग भी है, रेड विग भी था शायद वहाँ पे. आई नो, बट नथिंग एल्स इन द वे ऑफ हेयर, मुझे और तो कुछ याद नहीं है इस चीज़ के अलावा. सो डॉर्कस नोज नथिंग अबाउट द दैट ब्लैक बियर्ड. डॉर्कस को उस ब्लैक बियर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, सेड पैरट थॉटफुली एज ही वॉकड आउट इनटू द हॉल अगेन. सो अप टू हियर I hope you have understood. Thank you.